नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शलोम, चाइनीज में नी हाओ और जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी। Jambo Habariyako to our viewers from East Africa, South Africa and the entire continent of Africa. Fantastic. Who speaks Swahili. Absolutely fantastic. So Pradeep ji, Modi ji is in Mumbai. Modi is in Mumbai today. Bilkul, sir. And road show all over the place. First he did the road show at Ghatkopar and now I think he's very near, close to our office, if I'm not mistaken. Yes, Bilkul, sir. Just across LBS mark. On LBS mark. That is Lal Bahadur Shastri mark. Bilkul, very, very close. और बिल्कुल पास में ही है, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, मोदी जी का जो एंथुजियाज्म है और बाप रे बाप जो उनका जोश है काम करने वाला, ज़बरदस्त है, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब he takes elections as though that's his real calling. That campaigning for elections is absolutely fantastic. I don't know what the effect will be on the Mumbai elections, but you can't fault him for trying. He is trying and he is working harder than any prime minister I've seen before. Pradeep ji. Exactly, sir. The entire, he's been working. अभी बहुत सारे road shows जब कर रहे हैं continuously, and especially Mumbai. संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से respond करने लगे कि look, we have forced Prime Minister Modi to continuously come and visit Mumbai and talk to the electorate in Mumbai. And now he's even hot sun में भी मोदी जी जिस प्रकार से पदयात्रा करने के लिए शुरू हुए थे. Now, whatever you call it, the opposition might call it names, but Prime Minister Modi is not at all affected by all these talk. He is continuing, and various sections, जहाँ candidates हैं, वहाँ पर जबरदस्त तरीके से, he's been working 24/7. Now, we saw this continuously over the past 10 years, but election time, his aggression, his temperament, everything comes to the fore, to the best, and he gives his best. Now, it's not that Rahul Gandhi and Priyanka are not doing their well. They are also, I think they are also working very hard. We have never seen them working so hard. In fact, I don't think 2019 mein the Congress worked so hard like they're working now. No, they didn't. Priyanka Gandhi is out on the streets. She's taking on Prime Minister Modi. She's taking on Amit Shah. She's taking on the entire BJP. Now, Rahul Gandhi ji करते थे, Mallikarjun ji करते थे. But Priyanka Gandhi, just Prakash, she raised the tempo of her campaigning. That needs to be appreciated. So this is a election, but आप जो भी कहो, election has been very well and decorum अब तक सब लोग ने अच्छे maintain किए. और सबसे बड़ी बात ये प्रदीप जी, this comes in the wake of the two yatras that Rahul Gandhi undertook. Yes. One was the Kanyakumari to Srinagar. Yes. And Kargil and Ladakh Yatra, and the other one was from Manipur right up to Gujarat, actually up to Mumbai, Nyaya Yatra. In the Nyaya Yatra, of course, he travelled mostly by bus, but in the other one, he actually worked. I mean, which is absolutely amazing. He actually walked. God knows how many thousand kilometers. Some people say 4,000. I think it's more like 10,000 kilometers. I mean, that showed amazing energy and stuff. Very sadly, the Congress could not win in Rajasthan, Madhya Pradesh and in Chhattisgarh, in spite of the fact that everybody expected them to. They were not able to win. Now, I've been asking all congressmen, जितने भी कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबसे हम लोग यही बात पूछ रहे हैं कि भाई हाल ही में कितने 6 महीने हुए प्रदीप जी? बिल्कुल, एग्जैक्टली. अब छठा महीना चल रहा है. दिसंबर में रिजल्ट आ गए थे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गए थे. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का महीना चल रहा है. मई के महीने में वोट पड़ रहे हैं. अब मेरा ये कहना है कि इन 5 या 6 महीने में क्या बदलाव आया है कि आज की तारीख में लोग मोदी जी के खिलाफ वोट करेंगे. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई वुड एनीबडी वोट अगेंस्ट मोदी, फॉर व्हाट? मतलब कोई वजह तो होनी चाहिए ना. No, जितने लोग हैं, रिपोर्ट कार्ड आप देखोगे सर, इन द रिपोर्ट कार्ड इट्स एवरीथिंग देयर. You right from international relationship, from being the digital world, जो पूरे देश विश्व में सबसे बड़ा digital revolution India is there. You talk about
आर्टिकल 370 जितने भी आप देखोगे वे नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्र के मुद्दा है देयर एंड गरीब कल्याण योजना है द गरीब कल्याण योजनाएं is the smallest things and Prime Minister Modi doesn't, he is not afraid to talk about toilets in any forum, in any world forum. He begins with, I am providing clean drinking water to every household in the rural areas, villages of India, which is sometimes far off for everybody. And by the way, he doesn't shrink from... Just 1 second, Pradeep. Do we have a guest, by the way? Because I've been asking again and again, nobody seems to be replying. Is the guest there with us or not there with us? Can somebody please talk to us? All right, the guest is not there with us. Okay. Well, I was told that the guest is there with us as soon as we came into the studio. Apparently, it seems that the guest is not there with us. Has Mr. Nizamuddin Rain also joined the BJP? I mean, I don't know. Has he? By the way, I wouldn't be surprised at anything these days. आज की तारीख में कोई भी चीज surprising नहीं होगी अगर after all, if Mr. Wagmare can go join the BJP Mr. Eknath Shinde, just one day before, he was here on the show and he was praising Mr. Rahul Gandhi and running down Mr. Modi and Mr. Shinde and everybody else. And the very next day, he goes across and joins Mr. Eknath Shinde. So, what's going on? I mean, I wouldn't be surprised at all at anything. Pradeep ji, aap kuch bol rahe the, please. No, we're talking about the report card. And Prime Minister Modi is brave enough to talk about the toilets that he's making the most poorest of poor. Toilet in the most remote village, which is sometimes inaccessible. Though now there's road connectivity, but he's talking about toilets on world platform. He's talking about providing drinking water to clean drinking water to the most remote villages. And that is what he's taking pride in. He's never, international affairs with the career. Everybody knows Modi's stature where Russia is concerned, where US is concerned, where the Western Bloc is concerned, his relationship with them, with the Middle East. I mean, he has got a fantastic reputation there. At the same time, on the World Forum, in any UN forum, he's talking about providing drinking water to the most poorest of poor. He's talking about toilets that he's been providing. He's talking about how Ayushman is transforming the health sector where the poorest of poor through this Arogya Mandirs can interact and diagnose his problems with the best hospitals in the country. Yeah, but the only problem is, Pradeep ji, as we've seen right over here in our office as well, there was this brother of this young man who works with us who had this Ayushman card, and he found that the Ayushman card is not working anywhere. So, I mean, perhaps that all those schemes need a bit of fine tuning, because they say कि भाई आयुष्मान भारत कार्ड जो है उसका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपको उसमें सर्जरी करानी पड़ेगी, बिना सर्जरी के वो चलता नहीं है. I don't know if that is true, because and most hospitals are not accepting the Ayushman card. What's going on? I mean, that is where he has to really work on. Though he's got the policies on place, is it trickling down to the last man who needs that particular help? Now you're talking about more than 2 lakh Ayushman Mandirs. तो क्या ये 2 lakh आयुष्मान थी का अपना कनेक्टिविटी तो कर दिया, गरीब से गरीब आदमी can connect with the best hospitals in the world, in India. But at the same time, as you said, is that Ayushman card working? और दूसरी बात क्या है प्रदीप जी, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, वैसे यहाँ पे बाला साहब ठाकरे क्लिनिक बनाए गए थे. अब वो कितने बने मुझे तो मालूम नहीं है. पहले बड़े जोर शोर से लगाए गए, कोई 4 या 5 के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, बसों के ऊपर उनके पोस्टर भी थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? There is no noise about them, there is nothing about them. What is going on? But let me tell you this, BMC hospitals है, ये है. My son was bit by a dog. They gave the best injections and everything was given at 2 rupees. We were shocked. Kariban 20 injections here to take 20 injections. Rabies is. No, I'm trying to say that if you're going there, but आपको ये complaint करना पड़ेगा AC नहीं है. But for a poor man, उससे क्या मतलब है कि सर AC वगैरह की बात है ही नहीं. Yes, yes. और AC होना भी नहीं चाहिए. Very frankly बिल्कुल. If that central AC is the worst possible thing that you can have in a hospital, that spreads disease like nothing else. मेरा ये कहना है. But the medicines are there, the treatment is there, the doctors are there. BMC में पहले से ही ऐसे था, कोई नई चीज नहीं है. Let's be very clear. Whatever facilities are available today in the BMC have not really been enhanced. They were already there. What I'm trying to say is, when they said that they would have these Balasaheb Thackeray health centers or whatever else they were called, where are they?
मतलब जो आपने वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ना सर। I think they are there. Now we cannot fault the government there. They are hospital जो बाला साहब दवाखाना है, and I think people who go there are getting the best of treatments. There's nothing, medicines are available. I think we've got Mr. Nizamuddin Yes, Brain yes. with us. It's 7:18, so we'll have to get the next guest after 10 minutes. I hope you. After 18 minutes. No, whatever. Because निजाम Mr. साहब नमस्कार। निजाम जी तो बोलेंगे और दबा के बोलेंगे। निजाम साहब नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी मुंबई में हैं। जी सर। आपने क्या कर दिया सर? मोदी साहब इतनी बार आ रहे हैं मुंबई बहुत में। प्यार हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में 6-7 बार प्रधानमंत्री आ गए। जी, तो आप लोगों ने क्या कर दिया सर कि बार बार आप लोगों से इतनी मोहब्बत हो गई है कि मोदी जी यहाँ पे बार बार आ रहे हैं? ये क्या बात उनको है? सर पता चल गया है कि महाराष्ट्र में वो पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो रोज आ रहे हैं। अभी फिर आ रहे हैं, 17 को वापस भी आएंगे। जी, तो अब वो लगातार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जी। उनकी जो आखिरी आस थी वो महाराष्ट्र थी, और महाराष्ट्र में उनकी पूरी आस खत्म हो रही है, और यहाँ वो तकरीबन 40 सीटें हार रहे हैं। 40 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव जीत रहे हैं। 40 सीटें, मतलब बीजेपी को Yes, सिर्फ sir. 8 सीटें आएंगी। 8 भी मिल जाए तो बड़ी बात है उनके लिए। 8 यार, ये हालात तो बहुत खराब है सर। इस वक्त देश की जनता जो है खुद चुनाव लड़ रही है। ये निजाम जनता साहब ये बल कोई से बहुत बीजेपी ये चुनाव कुछ हो ज्यादा गया। नहीं हो गया जो आप बोल रहे नहीं सर, आप देखिएगा ये पूरी बयार बह रही है। हैं? जी बहुत जबरदस्त तरीके से लहर है सर। जी प्रदीप जी। आप प्रियंका गांधी जी बहुत एग्रेसिव तरीके से पूरे कैंपेनिंग चालू कर दिया। हमने प्रियंका गांधी जी के इस जोश कभी देखा नहीं। प्रियंका गांधी जी ने मोदी जी प्रधानमंत्री से कहा कि आप हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। हिंदू मुस्लिम आप अभी जो एग्रेसिव कैंपेन आप चालू कर दिया, हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए। मुद्दे पे बात किए, एम्प्लॉयमेंट पे बात कीजिए, किसानों पर बात कीजिए, प्राइस राइज पर बात कीजिए। ये एक एग्रेसिव प्रियंका गांधी हमने पहले कभी नहीं देखा। 2019 में भी इनके कैंपेन हमने देखे थे, मगर अभी जिस प्रकार से वो टेम्पो रेस किया कांग्रेस, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और मुद्दे बोले कहो मुद्दे पर आइए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, तो ये कैसे निजामुद्दीन जी एक नया कैंपेन और नया जोश तो देखने को मिल रहा है, इसको जरा वर्णन कीजिए आप। देखिए सर, ये झूठ और सच की लड़ाई है। मोदी जी लगातार देश के साथ झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच साबित कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं, और हर 2 दिन में प्रधानमंत्री अपनी चीजों से भाग रहे हैं। जो भाषा देश के प्रधानमंत्री की होनी, पूरा साथ देकर प्रियंका जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को और दूसरे हमारे नेताओं को, जो हमारे इंडिया अलायंस के तमाम, प्रियंका जी पूरे जोश के साथ जनता की बात जनता के बीच में रख रही हैं, और प्रधानमंत्री जी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनको तो मिल गया ना मुद्दा एक। निजाम साहब, अगर सुबह से शाम तक देखा जाए आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके पास तो सिर्फ एक ही विषय है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी की गई अरविंद केजरीवाल के घर पे। इसके अलावा और कुछ चल ही नहीं रहा है। नहीं सर, अब उनके पास कोई विषय ही नहीं है। वो जहां दिन में पूरे दिन प्रधानमंत्री को दिखाते थे, एक फेस का चुनाव और होने दीजिए तो प्रधानमंत्री की तस्वीर बदल के नड्डा जी आ जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके जाने की तैयारी है, और जाने की तैयारी में वो काम कर रहे हैं। क्या क्या लेके उनको जाना है वो सब पैकिंग चालू हो गई है, तो वो लेके जाएंगे। बाकी का कोई काम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक और जितने इस देश के टॉप के मीडिया के सोर्सेज हैं, सबने उनको बता दिया है। यहां तक कि उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी 2 ग्रुप हो गया। एक ग्रुप भाग रहा है दिल्ली छोड़कर, वो कह रहे हैं हम जहां से आए थे डेपुटेशन पर, हमें कृपया वहां भेज दिया जाए। तो इससे ये लगने लगा है कि सत्ता मोदी जी के हाथ से फिसल गई, और मोदी जी वापस अपने गुजरात जाना चाहेंगे तो वो अपने प्रिय अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया है, और जनता ने उनका पूरा सर्टिफिकेशन कर दिया है कि अब आप जहां से आए थे वहां जा सकते हैं। लेकिन निजाम साहब, मैंने पहली बार देखा है नरेंद्र मोदी जी को, पहली बार नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहली बार उन्होंने 2 दिन के अंदर 2 इंटरव्यू दिए एक ही चैनल को। आज तक को 2 इंटरव्यू दिए, पहले एक दिया फिर उसके बाद दूसरा दिया बनारस में। ये क्या हो गया? और वैसे हर चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं अभी तो
अरे आपने जी आपने उनका एक इंटरव्यू देखा, 3 दिन पहले उन्होंने देश के मुसलमानों के साथ क्या बात कर रहे थे, और 3 दिन के बाद का जो इंटरव्यू आज आया है और कल जो चला है, जी। वो पानी में कहीं घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो इस देश के मुसलमानों के साथ हैं, मेरी माँ ईद के दिन खाना नहीं बनाती थी, मुसलमानों के घर से खाना आता था, वही खा के हम लोग कर लेते, तो हम तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेकिन 3 दिन पहले देश की मीडिया ने जो उनका भाषण रिकॉर्ड किया है, वो भाषण साथ में ही दिखा रहे हैं ना लोग। तो इससे ये समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन निजाम उन्हें कोई साहब किसी चीज निजाम साहब, लेकिन मोदी जी ये कहते हैं बार बार कि मैंने मुसलमानों का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो घुसपैठी हैं और जिनके ज्यादा बच्चे, मैंने कब बोला मुसलमान? तो मोदी जी इसका मतलब स्वयं घुसपैठिए हैं, उनके पिता के पास 6-7 बच्चे। तो अगर यार, ये तो वो उनसे अपने पूछना लिए पड़ेगा साहब, शब्द का संबोधन करते हैं तो उन्हें क्लियर भाई करना हमें तो चाहिए। इंटरव्यू नहीं दिया आज तक। नहीं, उन्होंने उसके साथ उन्होंने ये कहा, घुसपैठियों के अलावा जो चीजें हम छीन कर लाएंगे, हम उसमें कांग्रेस उनको बांट देने वाली है। जी। अब आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री को 2 भैंसों की फिक्र है, देश के कोई फिक्र नहीं है। देश में करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच रहे हैं, देश तबाही की ओर जा रहा है, कोई कारोबार नहीं है, और वो जो है 2 भैंसों और एक मंगलसूत्र में पड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये बात में गलती भी है, ये बात गलत भी है, क्योंकि मोदी जी जी। ने एक्चुअली कहा था, प्रदीप जी आपको याद होगा, Yes, yes. उन्होंने एक्चुअली कहा था कि भाई आपका आरक्षण जो है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भले ही मोदी जी कहते हैं कि मैंने नहीं लिया, देने का विषय ही नहीं है ना जी। सर, देने का विषय नहीं है, क्योंकि 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है ऑलरेडी। जी। ये देने जी, का बिल्कुल क्या सुनो सवाल सर, है? करेक्ट। ये तो इनको 10 साल के राज्य में भी मिल रहा है, और इनमें दम नहीं है कि वो उसका रिजर्वेशन कट कर सकें। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। एक मिनट निजाम साहब, इसके ऊपर आप जरा कुछ विस्तार से बताएं। ये कहा गया कि कर्नाटक में मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दिया गया, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने किया वो किया वो किया। अरे लेकिन गुजरात में तकरीबन कोई 63 मुसलमान जातियां हैं जिनको पहले से ही रिजर्वेशन है, तो ये मतलब क्या हुआ? कुछ गुजरात समझ में नहीं क्यों, आया, बताइए। देश में सर, देश में जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जी, ऑफ इंडिया ने जी। दिया है, वो अटल जी की सरकार में भी था। अटल जी के बाद जो है कांग्रेस की 10 साल की जो सरकार थी मनमोहन की, उसमें भी था, उसके पहले था, और स्वयं मोदी के 10 साल के कार्यकाल में वो चल रहा है जी। उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, और ना उनमें दम है कि वो कह सके कि हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप महाराष्ट्र का प्रकरण देखें, जो जब मराठों का विषय आया था तो भुजबल ने जिस बात को लेकर ताल ठोका था वही तो था। तो वो रिजर्वेशन में ऑलरेडी मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कोई रिजर्वेशन किसी भी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, जिसको देश की संसद ने रिजर्वेशन दिया है, उसे कौन हटा सकता है? निजामुद्दीन ये जी, तो- मगर मोदी जी का कहना है आप यूपी में जीरो होंगे, 1 सीट नहीं मिलेगा आपको। खाता भी कल नहीं खोलेंगे। वाराणसी में वही बोले, और बोले किस लिए नहीं मिलेंगे, वो बोले नहीं इसलिए नहीं मिलेंगे कि राहुल उन्होंने गांधी ये जी बात अपने लिए हार कही जाते हैं। है। सुनिए वो ये एग्जाम्पल ऐसा जो है, उन्होंने कहा कि ये अमेठी बात- में हारने के बाद राहुल गांधी जी एक भी बार अमेठी नहीं गए, एक भी, बोला हार जीत तो होता रहता है, मगर हारने के बाद एक बार भी राहुल गांधी जी अमेठी नहीं गए। तो लोग उत्तर प्रदेश के परिवारवाद को नकारेंगे, नो परिवारवाद, और ना काम करने वाले को वोट ऐसा है देंगे। कि बोलिए निजामुद्दीन। ये विषय अभी 4-6 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा कौन किसको नकार रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा जो इनका खुद की सरकार थी, लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं लोगों को, टेम्पो फोड़ रहे, तोड़ रहे, सब कर रहे हैं, और जनता की नब्ज जो है इनको पता चल गई है, इनके ब्यूरोक्रेसी ने इनको बता दिया है। अब वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक इस देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। कितना हारेंगे कितना जीतेंगे वो उनको अच्छे से पता है। शायद इस बार आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में हमारे एलआई समाजवादी कांग्रेस और दूसरों का जो हाल होना है, उसको देखकर इनको लगेगा कि इन्होंने कहां सियासत में धोखा खा गए, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें ला रहे हैं, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां तक कि इस बार हमारा गुजरात में भी खाता खुलेगा, कर्नाटका हम इनको साफ करेंगे, तेलंगाना साफ करेंगे इनको,
और उसके बाद साउथ का तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। मोदी जी 130 शरद पवार जी का एग्जाम्पल दे रहे, बोले शरद पवार जी कहा कि छोटे छोटे पार्टी को मिलके कांग्रेस में मर्ज होना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि यह संकेत है कि कांग्रेस को डर है कि ऑपोजिशन का पद भी ऑफिशियली जो होता है उनको नहीं मिलेगा। तो शरद पवार जी ने कहा कि छोटे छोटे दल जब सब मिलके हम लोग कांग्रेस में मर्ज होता है तो एटलीस्ट ऑपोजिशन करके मान्यता मिलेगा। तो मोदी जी का कहना है कि आपको डर है कि आपको ऑपोजिशन का भी मान्यता नहीं मिलेगा। जी नहीं, निजामुद्दीन जी नहीं, शरद पवार जी ने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया। शरद पवार जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट ये है कि छोटे छोटे दल आगे जाकर बड़े दलों में विलय कर सकते हैं, और उसके उन्होंने उदाहरण दिया वाईएसआर रेड्डी का। आपने देखा होगा कि आंध्रा में जो उनकी पार्टी थी उन्होंने उसका विलय किया। तो ये छोटे छोटे दल राजनीति में मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने जब लोगों ने कंफ्यूजन पैदा किया तो शरद पवार साहब ने बहुत क्लियर कट कहा कि जो लोग राजनीति में हैं वो अपनी तरह से जीते हैं। तो ये बात मोदी जी को इसकी चिंता होनी चाहिए कि उनके यहाँ जो दल है वो टूट के भाग रहे हैं। सर यहाँ पे एक सेकंड तो होगी कि जिन जिन चीजों पर वो देश के सामने हिंदुत्व का खाका रखते थे वहां उनके कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जीतने और हारने की बात छोड़ दीजिए, कश्मीर जैसी जगह पर 3 सीटों से बीजेपी भाग गई, चुनाव लड़ने से भाग गई जी, कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। नामबिहार साहब कहाँ हैं आप? मोदी जी को बताइए। हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके तारीफ करते रहते हैं। हम तो आपके साथ हैं सर। आज तो तारीफ आपका बड़ा धन्यवाद, लेकिन आप मोदी जी से कहिए कि जिस कश्मीर के मुद्दे पर आप देश में मुसलमानों को घेरते रहे हैं और उनको बेवकूफ बनाते रहे, हमारे हिंदू भाइयों को भड़काते रहे हैं, उस कश्मीर से मोदी जी भाग निकले। एक भी कैंडिडेट नहीं भाग निकले, तीनों लोकसभा के अपने सांसद नहीं दिया, एक भी कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया और लड़ाई नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, ये रिजर्वेशन के इशू के ऊपर छोटी सी बात है सर, छोटी सी बात है जी सर। ये मेरे पास गुजरात की लिस्ट है, गुजरात की लिस्ट है, और ये लागू है 1993 से, 1993 से है सर ये। यानी जो 2002 से लेकर के 2013 तक मोदी जी का भी जो कार्यकाल था उसमें भी लागू थी। ये मुस्लिम ओबीसी है सर, जिसमें प्रदीप जी सुनने वाली बात है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सुमरा ओबीसी, अरब, छिप्पा, बारभुंजा, लोहार, पांचाल, बागबान, राइन, पाखाल, वाघेर, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, वंजारा, कंगजीवाला, वंजारा ऑफ डंग्स डिस्ट्रिक्ट ओनली, हजाम मुसलमानों में, खलीफा मुसलमानों में, बाबर मुसलमानों में, थेबा, सिपाही पटनी जमात, सिपाही पटनी जमात और तुर्क जमात, और सिद्धि where they are not scheduled tribes. Scheduled tribes among the Siddhis get reservation in Gujarat, by the way. Sandhi Muslim again they get reservation in Gujarat. ऐसे सर 67 जात हैं ऐसी जिनको रिजर्वेशन दी गई है गुजरात में। तो मेरा ये कहना है, नहीं सर पूरा सवाल सुन रहे हैं, तो इनको क्या जरूरत पड़ी थी कर्नाटक के बारे में बोलने के लिए कि कांग्रेस ने उधर रिजर्वेशन दी थी? अरे भाई आप भी तो दे रहे हैं, आप इसलिए दे रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, देनी पड़ेगी भले आप चाहें या ना चाहें। निजाम साहब बताएं। सर बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जब मंडल कमीशन बना इस देश में, मंडल कमीशन के बाद हर राज्यों में उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा, वहां की सरकारों से चर्चा करके वहां कौन कौन सी बिरादरियां हैं उनको उन्होंने इंक्लूड किया, और जिनमें, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि मुसलमानों में इस तरह कोई मसला ही नहीं था, वो तो कारोबार के लिहाज से कौन गरीब है उस हिसाब से उनको दिया, और उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिफाई किया, और वो बाकायदे केंद्र की सभी नीतियों में लागू है। सिर्फ राज्य सरकार में जब कहीं आते हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि पिछले 15 वर्षों में वो आदमी स्टेट में रहा है क्या, अगर वो 15 सालों में उस राज्य में रह रहा है तो केंद्र के अलावा राज्य के भी जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे उसको। ये आदेश है उसमें, और ये अमेंडमेंट है, तो उसमें तो ये चूंकि धोखा देने की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि कर्नाटका में एक्स्ट्रा देंगे, महाराष्ट्र में एक्स्ट्रा देंगे, फला जगह ऐसा करेंगे, और फिर अब 3 दिन से तो खुद कह रहे हैं कि हम 1% कोई भी रिजर्वेशन इस देश में खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इस देश में संविधान खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बातें वो फिर से कह रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि देश का मूड बदल गया है, देश सच्चाई को चाहता है और देश ने इनको
बैठाने का मन बना लिया है। निजामुद्दीन जी, यही मोदी जी बोल रहे हैं, यही मोदी जी बोल रहे हैं कि देश का मूड 140 करोड़ जनता यही चाहता है कि हम 400 पार प्लस करें, 400 पार। ये देश की जनता जो इलेक्टोरेट है, और जनता के बारे में बोला, और ये भी कहा कि परमात्मा मुझे एक निमित्त बनाया है, निमित्त बनाया कि मैं विकसित भारत का सपना ये पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को दूं, और परमात्मा रास्ता दिखा रहा है जीतने का। अब परमात्मा भी है, इलेक्टोरेट भी है, लोग भी है, 140 करोड़ है। बांग्लादेश की सीटें और पाकिस्तान की सीटें वो भी मिला लीजिए तो भी 403 उनको नहीं मिल रही है। क्यों झूठी बातें करते हैं? सर अफगानिस्तान भूल गए आप। बच्चे हंस रहे हैं सर, अफगानिस्तान भूल गए। हंसते हैं जब आते हैं मोदी जी भाषण करने। वही आप जो पाकिस्तान, आज सीए के लिस्ट निकले हैं, सर्टिफाइड, उनको कॉपीज दिए हैं, लोग जो सीए के माध्यम से यहां आए हैं उनका लिस्ट निकला है। ये पहले लिस्ट सीएए का निकाल के सरकार ने एक्सेप्ट कर दिया है बहुत सारे लोगों को। पहले लिस्ट जो आज ही डिक्लेयर किए कि ये शरणार्थी हैं, यहां पर आए हैं, इनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये इंडियन सिटीजन है। ये सीए का पहला लिस्ट आज निकला है। तो निजामुद्दीन जी, तो क्या ये एक बात चल रहा था कि इंडिया अलायंस आएगा तो सीए को रिव्यू करेंगे, रोल बैक करेंगे, तो इसमें कोई सच्चाई है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब जनता से हम वादा करके अपने मैनिफेस्टो में जितनी चीजें हमने कही हैं, हमारी सरकार, हमारे साथियों की सरकार जो हमारा इंडिया अलायंस है, उसकी सरकार बनने के बाद 100% पहले हम अपने मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। उसके बाद जो देश के बड़े एक्सपर्ट हैं, जो देश को चलाने में मदद करते हैं, उनसे चर्चा करके देश को क्या आवश्यकता है वो चीजें लागू की जाएंगी। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी का झोला तैयार हो चुका है, आप उनकी बात से समझ लीजिए। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, तो वो नहीं कह रहे हैं, ये बात अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन कि हम तो लागू करेंगे। अरे जब आप सरकार में होंगे ही नहीं तो क्या लागू करेंगे? लेकिन ममता बनर्जी आपको ललकार रही है वहां से कि हमारी तरफ दिखना मत। एक बार हमने सीबीआई को दौड़ा के मारा है, अगली बार बीजेपी वालों का नंबर है, तो वो जाने को तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जाने कौन देगा? वो कहते हैं ना, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव जी ने कहा जाने कौन देगा? समाजवादी तो जाने नहीं देंगे, ऐसा कहा। नहीं, पिछले दिनों उन्होंने स्पेस में 2 जगहें बुक कर रखी हैं। स्पेस में, तो वो आउटर स्पेस में 2 जगहें बुक कर रखी हैं उन्होंने जाने के लिए। स्पेस में, देश में तो कोई उनको शरण नहीं देगा। तो इसके लिए व्यवस्था अभी से वो कर रहे हैं। देश की जनता इसलिए जागरूक हो गई। सर, आज आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले फिर एक एग्जामिनेशन का पर्चा जो है लीक हो गया जी, हुआ, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ये जानबूझ के कराया जा रहा है सरकार के इशारे पर। कल दौड़ा के वो पुलिस लोगों को अरेस्ट किया है, उनको ला रहे हैं। सब सरकार के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, इसलिए कि अगर पर्चा लीक हो जाता है तो वो नौकरियां देनी नहीं पड़ेंगी और इसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि देश के मोदी जी ने छोटी सी बात, निजाम साहब, आज एक बड़ा शॉकिंग वीडियो मेरे लिए एक्चुअली कल शाम को आया, यूट्यूब के ऊपर है, जेन्युइन वीडियो है, एक्चुअली असली वीडियो है, मध्य प्रदेश। वहां पर एक पोलिंग स्टेशन पर, क्योंकि तकरीबन 95% मुस्लिम्स थे, 95% मुस्लिम थे, पुलिस ने वोटिंग रुकवा दी। अब ऐसी कोई खबर आ रही है कहीं और से? क्योंकि ये तो बड़ा अरे और क्या, शामली से सर, उत्तर प्रदेश के शामली में लोगों ने, इन्होंने दौड़ा के मारा मुसलमानों को। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल तो जो वो इन्होंने अग्निवीर बनाया है, कल जो वीडियो आया अग्निवीर का, वो लड़का खड़े रह के कह रहा है कि मोदी को वोट करो। तो ये अग्निवीर इसीलिए बनाया कि आप जाओ और इस तरह की धांधली कराओ। ये पूरा देश देख रहा है इनकी दादागिरी, इनके लोग, और किसी को कार्ड नहीं है, किसी की जो वोटर लिस्ट सेकंड लिस्ट, ये चीज मैंने पहले कभी देखी नहीं है। ये बहुत पहले हुआ करता था सर, जब सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे, कैमरे नहीं थे, और ये सब सामने दिख रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब पंजाब का जो चुनाव था चंडीगढ़ वाला, जिस तरह से उसने बदमाशी करके वहां के मेयर को हराया था, वो सारी चीजें ये और उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है भाई। मारपीट कर रहे हैं। ये अपने दर्शकों को मैं बता दूं, वो जो मसीह साहब हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
अभी भी FIR दर्ज हुआ। अभी भी वो माइनॉरिटी सेल के हेड हैं वहां के, बीजेपी के, अभी भी। जी निजामुद्दीन जी, नहीं, मोदी जी सर, का कहना मैं अधिकारियों मुसलमान के- के खिलाफ नहीं हूं, मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। बोले कि हमारे मुस्लिम बहना जो है उनसे पूछिए, ट्रिपल तलाक का अबॉलिशन करके मैंने उनको न्याय दिया, मैंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको न्याय मिला। कहा मैंने आवास योजना में घर देके मुसलमान बहनों से बोले, मेरे सिंसियरिटी का अगर आपको पूछना है तो हमारे मुसलमान बहनों से पूछिए, ये मोदी जी कह रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया निजामुद्दीन जी? कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है सर, आप उनके दोनों स्टेटमेंट जो आगे और पीछे हुए हैं वो आप खुद देख लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री जाकर चुनाव सभाओं में मुसलमानों के अगेंस्ट भाषण करता है और बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनवा कर उनको सम्मानित करता है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी? सबूत देने की क्या जरूरत है? ये सबूत नहीं है सर, ये कह देने से देश की जनता नहीं बदलती। देश की जनता को उनकी सत्यता का पता चल गया है और उनकी जो बेईमानी का तरीका है कि दादागिरी करो, अपने लोगों से कहो। जो उनके सांसद बयान दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? आप उनके सांसद महाराष्ट्र में बयान दे रही, हरियाणा में बयान दे रही, कर्नाटक में बयान दे रहे हैं और वो सीधा बोलते हैं हमको चार्ज दीजिए, संविधान बदलेंगे, मुसलमानों को मुल्क से बाहर करेंगे, हमको 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम मुसलमानों से निपट। ये क्या है? किससे मोहब्बत कर रहे हैं वो? कितने लोगों पर उन्होंने एक्शन लिया, कितने पर कार्रवाई कराई उन्होंने? झूठी बातें देश के जनता के सामने रख के कोई मोदी जी का भला नहीं होने वाला है। उनकी नफरत ने आज इस हालत में पहुंचा दिया है कि लोग मुस्लिम सोसाइटी और गुजराती हिंदू सोसाइटियों में एक दूसरे को घर देने को तैयार नहीं है सर। निजामुद्दीन जी, आज अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान का सेपरेटिस्ट लीडर था, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया लोकसभा का, लोकसभा नॉमिनेशन। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र का महिमा है या ये गवर्नमेंट सरकार जो अभी सत्ते में है वो दुरुपयोग करके? तो ये खालिस्तान का जिसको अरेस्ट किया वो नॉमिनेशन भरा अमृतपाल सिंह पंजाब से और वो एक्सेप्ट हो गया। तो आप इसको मेरा कैसे? ख्याल है शायद उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन मोदी जी के जेब में है। मोदी जी जो डायरेक्शन करते हैं वही इलेक्शन कमीशन कहता है, उसके अलावा वो किसी की कंप्लेन भी नहीं लेता। इतनी बड़ी घटनाएं इलेक्शन कमीशन के दौर में हुई और सैकड़ों से ज्यादा कंप्लेन दर्ज है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, निकम्मा है, नाकारा है। इस देश में वो उसका अधिकारी रहने के लायक नहीं है, लेकिन वो लोकतंत्र की दुहाई देकर लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन मोदी और पीएमओ से आता है। जितना ये कहते हैं उतना वो सुनता है, इसके अलावा कोई बात नहीं सुनता। अभी पूरा मोदी देश जी मीडिया चिल्ला रही है। मोदी जी जहां थोड़ा सुर बदला कि मैं मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, वही गिरिराज सिंह और आसाम का चीफ मिनिस्टर वो कहते कि 400 प्लस दो ताकि हम और मंदिर बनाएं। 300 आपने 303 दे दिया तो हमने राम मंदिर बना दिए, अब 400 प्लस दो तो बाकी का काशी और मथुरा भी हम बना देंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है निजामुद्दीन जी। यहां प्रधानमंत्री कभी बोलता है, कभी अब लास्ट बोले कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं। अब गिरिराज सिंह और आसाम का चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि 400 प्लस इसीलिए दो कि हम जो अधूरा काम है उस। तो कैसे देखते हो क्या चल रहा है? आपको क्या आप कांग्रेस? पहले तो मोदी जी को कंफर्म करना चाहिए कि गिरिराज उनके पार्टी में है और असम का चीफ मिनिस्टर मानता उनके साथ है कि नहीं है। पहले वो कंफर्म कर ले। अगर वो झूठे हैं और ये सच है तो ये उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? उन्होंने 10 बार ये बात कही है। तो ये जवाबदारी किसकी बनती है? देश के प्रधानमंत्री की बनती है। और मुसलमानों से उनको कितना प्यार है वो उनको अच्छे से पता है। वो जिस तरह की बातें करते हैं, आज वो ये बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले क्या बात कर रहे थे, 3 महीने से पहले क्या कर रहे थे। इस देश में जितने केसेस हुए हैं उन पर अब तक उन्होंने क्या किए हैं, ये सब उनको पता है। इसलिए ये बातें बोलकर आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। तो 4 फेज के चुनाव हो गए, चारों फेज में मोदी बुरी तरह हार रहे हैं। अभी राहुल गांधी की बात कर ले सर, उसमें भी हारेंगे। राहुल जी की बात कर लें सर। अभी यस, जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, बार बार उन पर आरोप लगाया गया कि वायनाड में वो हार रहे हैं, इसलिए जबरन रायबरेली से उन्होंने नामांकन पत्र भरा। इस विषय में जरा आप अपनी टिप्पणी दें। ऐसा है कि राहुल जी ने बीजेपी को ऐसा गच्चा दिया
कि पूरी उनकी गोदी मीडिया के होश उड़ गए। रात के 12 बजे तक उनको ये नहीं समझा कि अमेठी कौन आ रहा है और रायबरेली कौन आ रहा है। इससे ज्यादा फेलियर मैंने हिंदुस्तान में आईबी और वो मीडिया को नहीं देखा। ये सबसे बड़ा फेलियर इस देश का था कि उनको 12 बजे रात तक ये नहीं समझा कि क्या उनका पूरा प्लान था कि राहुल गांधी आएंगे और 2 टके की जो सांसद हैं उनसे भिड़ेंगे और हम भी उसमें मजे लेंगे। उनको हमने उनकी जमीनी हैसियत तक पहुंचा दिया और किशोरी लाल जी वहां के बहुत ही नामचीन कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो घरों घरों तक पहुंचते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो चुनाव जीतेंगे। स्मृति जी बुरी तरह चुनाव हारेंगी और रायबरेली से भी और वायनाड से 4-4, 5-5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। ये लोगों को जितना भ्रमित करना चाहे कर ले, कहीं से इनको कोई चीजें मिलने हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। राहुल गांधी जी का नारा, कांग्रेस का नारा, हाथ बदलेगा हालात। राहुल गांधी जी ने आगे जाके कहा संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है। और उन्हें आगे कहा कि बेरोजगारी का जवाब आप वोट से दो, बेरोजगारी का जवाब वोट से दो। मगर संविधान खतरे में मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ है, मेरे लिए धर्म ग्रंथ है और किसी को इसको तोड़ने या छीनने नहीं दूंगा। ये कैसे स्टेटमेंट है? आप निजाम जी कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं? वो अगर मोदी जी को ये लगता है कि वो संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, तो जिन सांसदों ने संविधान बदलने की बात की उनका टिकट पहले कट करके उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके देश को बताएं कि देखिए इन्होंने कहा था, हमने इनको पार्टी से निकाल बाहर किया, हमने जो है इन्होंने संविधान की बात की, हमने इनको जेल भेजने, आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का काम किया। आप बढ़ावा देकर बाहर से बचाने का काम नहीं कर सकते। इससे घटिया बात क्या होगी कि आपने वो ब्रिजभूषण वाले मामले को आपने देखा कि बाप ने अपराध किया और बेटे को टिकट दिया, ये कहकर कि बाप के बात को हम जो है जस्टिफाई कर रहे हैं कि तेरे बाप ने अच्छा किया इसलिए तुझे हम जो है एक अवार्ड दे रहे हैं टिकट देके। सर आज अमित शाह जी ने कुछ कहा है, बात कहीं हुई है क्या? देश के रेपिस्ट को बचाने के लिए उसके बेटे को टिकट देके उसको पावर दे रहे हैं आप? कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं आप देश में? निजाम साहब, अगर देश में आप कोई बात कहते हैं तो आप उस पर टिके रहिए। राहुल गांधी का पूरा कैरियर उन्होंने जब जो कहा है उससे वो कभी पलट कर नहीं गए आज तक। आप निजाम साहब, अमित शाह जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिली गई, स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, मिली गई नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट टू अरविंद केजरीवाल, जो उनको बेल दिया गया है कैंपेन करने के लिए, ऐसा अमित शाह जी का कहना है। ये क्या दर्शाता है? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और उनको पता करना चाहिए, चौकसी कराएं। किसी का जाति अधिकार है, अगर वो कोर्ट में इसीलिए जाता है कि कोर्ट डिसाइड करे कि वो जस्टिफाई करे कि इनको देना है नहीं देना, ये काम कोर्ट का है ना। जितनी बार हम लोगों ने इस देश में आवाज उठाया कि मोदी जी ईडी का गलत प्रयोग कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह के स्टेटमेंट को देखिए, वो यही कहते हैं ना, मैं क्या कर सकता हूं, कोर्ट लोगों को अंदर रख रही है, यही स्टेटमेंट है ना उनका। तो आज उस मामले में वो पलट क्यों रहे? थूक कर चाटने से राज नहीं बनता। सच बात उन्होंने इसका मतलब क्या हुआ? उसी पर टिके ने। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है ना? मतलब कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं और वो हार रहे हैं चुनाव, इसलिए अब ये बहाने गढ़ रहे हैं। देखिए साहब, जब आदमी हारने लगता है चुनाव तो उसकी बोली भाषा, उसका जो फेस की कंडीशन है, उसके लोगों के साथ रहने की स्टाइल, वो सब बदल जाती है। आप देखिए कि इन्होंने हर घटियागिरी को किया। खरगे साहब के हेलीकॉप्टर की जांच कराई और जहां से पैसा इनको मिलता है, जहां से ये लूट रहे, लूटमार करा रहे हैं, वो आरोप राहुल गांधी पे मढ़ रहे हैं। कल पूरे देश ने उनसे पूछा है कि भाई अगर उन्होंने पैसा दिया है तो पहला अपराध, और उनके पास पैसा था और वो गलत काम कर रहे तो सरकार सो रही थी क्या? मोदी जी क्यों अब तक ईडी सीबीआई उसके घर नहीं भेजे? तो ये दो तरह की चूड़ियां भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां भेजेंगे
और क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहनी है, वो एटम बॉम्ब है उनके पास और वो रिटेलिएट करेंगे, तो मोदी साहब ने कहा चूड़ियां भेजेंगे। कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थक रहे हैं हमेशा। ऐसा है, इससे पहले के सारे स्टेटमेंट आपको पता होंगे कि मोदी जी देश को धोखा दिए, देश को धोखा दिए बिना बताए जाकर नवाज शरीफ के घर आम की पेटी और शाल देकर उनके मां का पांव पकड़कर आ गए। आप ही के चैनल पे था ये सब की स्टोरी। बिरयानी खाने बगैर बताए गए, देश को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया। तो जो आदमी खुद के चाल चरित्र पर भरोसा नहीं करता तो देश की जनता उसकी किस बात पर किस भरोसा करेगी? सर इस वक्त जो टीवी पर चल रहा है, अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ओबीएस में आपके शायद कोई प्रॉब्लम थी, हम लोगों की तरफ से ही होगी। अभी मोदी जी का जो रोड शो है घाटकोपर का, वो दिख रहा है अभी तो। लेकिन मोदी जी आकर घाटकोपर में मरे हुए लोगों पर अब तक एक आंसू नहीं बहा पाए। जी अभी तक उस बड़ी घटना पर नहीं, वो घटना के बारे में कुछ नहीं, 5 लाख देकर बच नहीं सकती सर। करेक्ट। इनके लोगों ने उसका जो है गिनीज बुक में नाम डलवाया, उस जो है इलीगल होर्डिंग का। वो जो होर्डिंग लगी थी जो गिरी, जिसमें लोग मरे हैं, उसका बगैर कंफर्मेशन के, उसका डॉक्यूमेंट्स बगैर चेक किए देश में वो जस्टिफाई करके इन्होंने गिनीज बुक में सबसे बड़ी देश की होर्डिंग है लोगों को आकर्षित करने के लिए किया। वो आज धोखे में है, लोगों के सामने उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। आप कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है, मगर मोदी जी का कहना है कि नेहरू जी से शुरुआत करते हैं। नेहरू जी ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लेके आए, राजीव गांधी जी ने प्रेस फ्रीडम को फिर कम करने की कोशिश की, और राहुल गांधी जी ने भरे पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो बिल फाड़ दिया जो मनमोहन सिंह और पूरे कैबिनेट ने सैंक्शन किया था। बोले लोकतंत्र को सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस ने दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी जी का उदाहरण दिया मोदी जी ने। मोदी जी और मोदी की पूरी मंडली और 100 साल तक रहे तो भी वो नेहरू का मुकाबला नहीं कर सकते। आज उनके 10 साल का कार्यकाल है। पहले 5 साल पे भी मैं बहस नहीं करता कि भाई नहीं समझदार रहे होंगे, नहीं देखा, नहीं समझे। 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो नेहरू को आप लाने की जरूरत पड़ रही है उनको? आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर खुद मत मरिए। आपका भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल रहा है, उस पर आप चर्चा कर लीजिए। पिछले 5-10 सालों से आप हैं इस देश में, 15 साल दूसरों की सरकारें रही हैं, जिसमें चौधरी चरण सिंह, आपके बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा। अपनी झूठ को छुपाने के लिए आप 70 साल पुराने लोगों को खोजकर नहीं ला सकते, और ये बातें इसी शहर में रहते हैं। परसों आपने नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स कि मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था शिवसेना उद्धव छोड़ने का, या मैं जेल में जाता, या कर दे रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, आप नेहरू की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर तो हुई नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। छोटी सी एक खबर दिखा दी, उसके बाद आगे बढ़ गए। रविंद्र भाईकर जी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है साहब, कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं। महाराष्ट्र टाइम्स ने फ्रंट में छापा है उसको जी, और उस खबर को लेकर हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर उनके पत्र दिए हैं कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो आदमी साफ आपके सामने कह रहा है, इंटरव्यू में कह रहा है साफ साफ कि मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था, या मैं जेल जाता या मैं इनके साथ जाता, और गया तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। तो अब इससे घटिया बात क्या होगी सर? तो इसका कोई बताते रहे कि मैं तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं बेईमानी नहीं करूंगा, और सारी बेईमान जितने थे देश भर के सब इनके यहां जमा हो गए। तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मराठी मानुस का मन बदल चुका है। आप देखिए क्या सबक सिखाएगा। शायद एक भी सीट, सिंगल सीट जो है शिंदे और अजीत दादा को सिंगल सीट मिल जाए महाराष्ट्र में। क्या बात है। आपका मैनिफेस्टो लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है, हम भी मानते हैं कि बहुत जबरदस्त है। महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया, जो गरीब श्रमिक है 25 लाख का हेल्थ कवर, फिर मिनिमम वेजेस आपने तय कर दिया, किसानों को न्याय। मगर बीजेपी का कहना है आप कुछ भी बोल सकते हो, पूरे तिजोरी खोल के दे सकते हो, आने वाला कहां है कांग्रेस? तो क्या जवाब देंगे निजामुद्दीन जी?
साहब ऐसा है, पहली बात तो वो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, वो मैनिफेस्टो देश की जनता का है। देश की जनता ने सिलेक्ट करके इंडिया अलायंस के साथियों को दिया, जो उनके सामने लाया गया है, और जनता ही डिसाइड कर रही है इस चुनाव को। कांग्रेस का नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ जा रहा है। सिंबॉलिक तौर पर पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते या इंडिया अलायंस का साथी होने के नाते वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। पूरा का पूरा चुनाव जनता खुद लड़ रही है। जनता खुद पहुंचती है कार्यक्रमों में, जनता पहुंचकर ये बताती है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, ये चीटिंग किया, ये धोखा दिया, ये भ्रष्टाचार किया, इसलिए हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इसलिए मुझे अपने मैनिफेस्टो पर गर्व है कि देश की जनता ने ऐसा मैनिफेस्टो चुना जो उनका भविष्य बदल देगा। राइट, थैंक यू सो मच सर। निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के Thank you, लिए। sir. थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार और जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार सर। Mr. Nizamuddin Rain, as usual, very, very passionate. But as I always keep saying, we saw exactly the same kind of passion before the assembly elections last year in December. The results were declared in December, and the results were, well, totally in favor of the BJP, apart from one state, which is Telangana. Now, I hope the same thing does not hit these guys on June the 4th. Yes, sir. And at the moment with us, from the Maharashtra Navnirman Sena,